This video, we are going to start our history chapter 3, the making of global world. Making of global world. पूरी पृथ्वी को एक कनेक्टेड वर्ल्ड के रूप में डेवलप करना, एक परिवार के रूप में डेवलप करना, ग्लोबल वर्ल्ड के रूप में इंडिकेट करना. In this chapter, we will study about the world, how it is connected to each other. All these things we know in this chapter. So now let's start this chapter from here. In this chapter, some units are allotted by the CBSC to take a part of board exam, and some unit is allotted to project work. So we will take a review of those slides here, those units here, which will be added in board exam. The pre-modern world, the 19th century, 1815 to 1940. We will take here the pre-modern world. The pre-modern world. When we talk about globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. एक ऐसी व्यवस्था जो पिछले कुछ 50 सालों के अंदर तेज गति से डेवलप्ड हुई है. We will take a review of that. But you will see in this chapter the making of global world has a long history. A history of trade, व्यापार की कहानी, व्यापार का इतिहास. History of migration, पीपल्स के माइग्रेट करने का इतिहास. एंड पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क. द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसे का फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. एंड मच एल्स, बहुत सारी चीजें हम इन दिस चैप्टर में देखेंगे. As we think about the dramatic and visible sign of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phase through which this world in which we live has emerged. At present, the world which we observe, that is interconnected to other. So globalization is a process of interrelation, interconnections of the countries to others. कंट्रीज का एक दूसरे देशों के साथ जो इंटरकनेक्शन है, इंटर रिलेशन है, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में इंडिकेट कर देते हैं. Although history, human societies have become steadily more interlinked. If you observe the human society, it is interlinked steadily. From ancient times, travelers, traders, priests and pilgrims traversed vast distance for knowledge. ये ग्लोबलाइजेशन एट प्रेजेंट का मोटिव नहीं है. अगर हम ऑब्जर्व करें, पुराने इतिहास को पढ़ें, पास्ट टाइम में भी इसी तरह का ग्लोबलाइजेशन था. ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स डिस्टेंस नॉलेज की तलाश में, अपॉर्चुनिटीज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए अलग अलग डिस्टेंस को कवर करते हुए ट्रेवल करते थे. They carried goods, money, values, skills, ideas, inventions, and also germs and disease with them. जो आदान प्रदान हुआ इन सब चीजों का हुआ. As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization. एक active coastal trade linked करता था Indus Valley civilization को with present day West Asia. We indicate that place. For more than a millennia, कौरी, हिंदी का शब्द है कौड़ी, शी शेल्स को कौड़ी के रूप में यूज किया जाता था एज ए करेंसी. फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका. इसका फ्लो हमें देखने को मिला चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक. अ लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज का जो स्प्रेडनेस हुआ, कैरिंग जर्म्स, मे बी ट्रेस्ड as far back as the 17th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. We can observe the figure of ship and memorial stone. गोवा म्यूजियम 10th century की इमेज है.
जो कि वेस्टर्न कोर्ट्स के सिग्निफिकेंस को इंडिकेट करती है. A important area of this chapter, that is Silk Route. Silk Route, how Silk Route link the world. The Silk Route are a good example of vibrant pre-modern trade. ये एग्जाम्पल माना जाता है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का, कल्चरल लिंक का between distant parts of the world. The name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silks cargoes along this route. सिल्क का ट्रेड होता था इस रूट के कारण, इस रूट के थ्रू, यही कारण है इसको सिल्क रूट का नाम दे दिया गया. Historians have identified several silk routes overland by sea, knitting together west regions of Asia, linking Asia with Europe. इस रूट के थ्रू हमें लिंक दिखाई देता है एशिया के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ और नॉर्थन अफ्रीका के साथ. They are known to have existed since before the Christian era. जो क्रिश्चियन इरा है उसका एग्जिस्टेंस हमें उसी समय से दिखाई देता है, till the 15th century. But Chinese pottery also traveled the same route. This route was not only utilized for the silk trade, this is utilized for other things, materials flow also. चाइनीज पोट्री ट्रेवल्ड फ्रॉम सम सेम रूट, इसी रूट से चाइनीज पोट्री का लेन देन हुआ. टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दिस रूट. इन रिटर्न, बदले में प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर का फ्लो हमें देखने को मिला यूरोप से एशिया तक. ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व थ्रू दीज रूट्स. क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रैवल करते हुए इसी रूट के थ्रू इंडिया में आई. मुस्लिम प्रीचर्स हमें ऑब्जर्व करने को मिल जाते हैं इसी रूट के थ्रू, कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रीचर्स का भी मूवमेंट हुआ. मच बिफोर ऑल द बुद्धिज्म एमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार इसी रूट के थ्रू हमें देखने को मिल जाता है. द ब्लू लाइन इंडिकेट द रूट सिल्क रूट which is connecting other countries to India. ये सिल्क रूट का रूट हमें दिखाई देता है लैंड सी नेटवर्क. Through these routes we can observe that only trade was not imposed. ट्रेड ही नहीं होता था, बहुत सारी हैबिट्स भी डेवलप हुई है, जस्ट लाइक फूड ट्रेवल्स. Here is an example of spaghetti and potato. Food offers many examples of long distance cultural exchange. फूड हैबिट्स मूव करती हैं पीपल्स के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स. पीपल्स अपने साथ नई नई क्रॉप्स को ग्रो करने के आइडियाज लेकर आए. एक लैंड से दूसरे लैंड पर ट्रांसफर हुआ क्रॉप्स कल्टीवेशन का. इवन रेडी फूड स्टफ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हुए जिनका कॉमन ओरिजिन हमारे देश का नहीं है. Take spaghetti and noodles. It is believed that noodles traveled west from China to become spaghetti. ये चाइना से वेस्ट की ओर मूव हुआ और जहां वहां पर ये स्पैगेटी के नाम से जाना जाने लगा. अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 15th सेंचुरी. सिसली के नाम से इसको इटली में जाना जाने लगा. Similar foods were also known in India and Japan. So the truth about their origin may never be known. कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनका ओरिजिन कहाँ है नहीं मालूम, बट दीज आर नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्ट कंट्री. ये मूवमेंट हुआ है इन्हीं ट्रेड रूट्स के थ्रू. पीपल्स के मूवमेंट के साथ ये फूड हैबिट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती हुई नजर आई हैं. मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, ऑल दीज थिंग्स जिसको हम अपनी डेली फूड आइटम्स का हिस्सा मानते हैं, इनके एंसेस्टर्स हमारे देश के ग्रोअर करता नहीं हैं, अदर देशों से ये हमारे देश में आई हैं. दीज फूड वर्स ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट. अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट था डिस्कवर्ड होने के बाद ये फूड हैबिट्स अलग अलग देशों तक मूव ऑन हुई हैं. इनफैक्ट मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड, बहुत सारे हमारे जो कॉमन फूड आइटम हैं ये अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट से रिलेट करते हैं, जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनके द्वारा हमारे देशों में आए हैं.
Sometimes the new crops could make the difference between life and death. एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्रॉप्स मेक ए डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इसके लिए एक स्टोरी यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। यूरोप पीपल्स पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर द इंट्रोड्यूस द हम्बल पोटैटो। यूरोप के जो पुअर पीपल्स थे, किसान थे, उन्होंने इरलैंड्स का इंसिडेंट है, इरलैंड्स में पोटैटो की फसल बोना शुरू किया। They became so independent on potatoes that when disease destroyed the potato crop, a time period was that जब ये पोटैटो की फसल खराब हो गई, these peoples began to die with starvation. 1840s में पोटैटो की फसल खराब होने के कारण यहाँ की जनता भूख से मरने लगी। स्टारवेशन यहाँ पर दिखाई देने लगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने उस फूड हैबिट को अपना हिस्सा बनाया है। इस फूड हैबिट के कारण इरीलैंड के पीपल्स मरने लगे। यहाँ पर हम एक हेडिंग पढ़ रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। यू नो बच्चों, आपको पता है कि 3 तरीके होते हैं किसी भी देश को अपना गुलाम बनाने के। वन इज वॉर, अटैक करो, अपने देश में मिलाओ, गुलाम बनाओ। डिजीज, when it is not possible to attack on that country, flow the germs of disease at that country. And third is trade. वॉर के एग्जाम्पल हिस्ट्री में भरे हुए हैं, कितने भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। डिजीज के थ्रू भी कंट्रीज को जीता गया है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। ट्रेड का एग्जाम्पल हमारा अपना देश है। ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा इंडिया 200 ईयर्स तक, जो बताता है कि ट्रेड की पॉलिसी के तहत वो इंडिया में आए और किस तरह से हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route. जैसे ही सी रूट की खोज हुई, ये जो कंट्रीज थे दूर दूर तक फैले हुए थे, श्रंक हो चुके थे। 4 centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom, crisscrossing its waters. The Indian subcontinent was central to these flow. Indian subcontinent बीच का एरिया माना जाता था इन सब फ्लो के लिए। The entry to the Europeans helped expand or redirect some of these flow towards Europe. Before its डिस्कवरी, अमेरिका की खोज से पहले, अमेरिका जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी, ये एक कह सकते हो कि एक ऐसा एरिया माना जाता था जो रेगुलर कॉन्टेक्ट से कट ऑफ था। पीपल्स का इनके साथ इंटरकनेक्शन नहीं था, ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से बिल्कुल अलग थलग था। But from the 16th century, it vast land and abundant crop and minerals began to transform trade and lives everywhere. Precious metals, silver, mines located present day Peru and Mexico also enhanced Europe's wealth. यहाँ पर जो मिनरल्स थे उनके कारण यहाँ की वेल्थ बढ़ी हुई थी। Legends spread in 17th century. एक फेबल वेल्थ, एक लेजेंड थी, एक कथा थी प्रचलित कि अमेरिका में एक फेबल वेल्थ, एक छुपा हुआ खजाना है। Many expeditions set off in search of El Dorado. El Dorado वो प्लेस जहां पर ये गोल्ड, सिटी ऑफ गोल्ड इसको कहा गया, फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, जिसमें खजाना छुपा हुआ है गोल्ड का। ये कथा जैसे ही प्रचलित हुई, पीपल्स ने अमेरिका को गुलाम बनाने की शुरुआत कर दी। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। डिजीज इसका एग्जाम्पल माना जाता है। यहाँ पर डिजीज को करेक्ट करने के लिए स्टोरी बताई गई है। Portuguese or Spanish conquest, the colonization of America was decisively underway by mid-16th century. European conquest was not just a result of superior firepower. ये फायर पावर का रिजल्ट नहीं रहा, but most powerful weapon अमेरिका को जीतने के लिए जो बनाया गया, that was स्मॉल पॉक्स डिजीज के जर्म्स, जो कि वहां के पीपल्स में छोड़े गए। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, बिकॉज अमेरिका आइसोलेटेड कंट्री के रूप में जाना जाता था, अदर पीपल्स के साथ इसका कनेक्शन नहीं था। इस कारण से यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनके अंदर इतनी अधिक इम्यूनिटी नहीं थी कि वो इन जर्म्स को झेल पाए।
स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव ए डेडली किलर। जैसे ही स्मॉल पॉक्स के जर्म्स उस देश के अंदर एंटर्ड हुए, ये एक डेडली किलर साबित हुआ उसके लिए। स्प्रेड डीप इन द कॉन्टिनेंट, ये स्प्रेड डीप हो गया उस कॉन्टिनेंट में, पूरी तरह से फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण बना। Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but अब एक रास्ता होता है, मान लिया कोई आपके देश पर अटैक कर रहा है तो आप गन से, हथियारों से उसका सामना कर सकते हो। बट डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, इस तरह की बीमारी के अगेंस्ट किस हथियार का यूज किया जाए? अंटिल द 19th सेंचुरी पावर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। यही कारण है यूरोप में पावर्टी और हंगर कॉमन बन गई। सिटीज वर क्राउडेड, डिजीज वर वाइड स्प्रेड। सिटीज बहुत क्राउडेड हो गए, चारों तरफ बीमारियां फैल गई। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन हो गए, रिलीजियस डिस्टेंटर्स वर persecuted. Thousands therefore fled Europe from America. इस सिचुएशंस में हजारों लोग अमेरिका छोड़ छोड़कर भागने लगे। Here by the 18th century plantations worked by slaves captured in Africa. जो प्लांटेशंस वर्कर्स थे वो कैप्चर किए गए अफ्रीका में, वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। Until well into 18th century, China and India were among the world's richest country. 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया जो रिचेस्ट कंट्रीज में जाने जाते थे वर्ल्ड में, दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। वो भी एक मेन टारगेट था एशियन ट्रेड का, क्योंकि अपनी वेल्थ के कारण ये भी पूरी तरह से टारगेट पर रखे गए। और आप जानते हो रिजल्ट है, अपनी वेल्थ के कारण इंडिया भी गुलाम बना है। फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव restricted overseas contacts and retreated into isolation. China reduced role and rising importance of the Americas gradually moved to the center of world trade westwards. Europe now emerged as the center of world trade. धीरे धीरे यूरोप सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया वर्ल्ड का, और एक नई हिस्ट्री हमें ऑब्जर्व करने को मिली। द 19th सेंचुरी 1815 to 1814, ये यूनिट आपकी बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होनी है, आपको केवल कॉन्केस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक की यूनिट को ही कवर करना है। सो बोर्ड एग्जाम के पार्ट के लिए आप इतना ही एरिया कवर करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, चैप्टर्स, यूनिट्स आप पढ़ेंगे। सो प्रिपेयर दिस यूनिट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए इतने यूनिट को आप प्रिपेयर कीजिए। चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिए, और जो भी क्वेश्चन इसमें से कवर हो सकते हैं उस एरिया को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर जितना हमारा बोर्ड में इंक्लूड किया गया है, वी हैव कंप्लीटली टेक हियर, सो रीड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस